If you're ready, I'm sharing my screen. There you are. So we are ready, but we will share the screen after few minutes. Can you see the screen? Yes, yes. All right, thank So you. we are going. चलिए शुरू करते हैं जी. अब कमीज तो मैंने पहनी हुई है लेकिन खड़ा नहीं होऊंगा नीचे पजामा पहन रखा We are live now. All right, thank you very much. Thank you. Go ahead and introduce me, please. जी. सर आप अपनी स्क्रीन जरा अभी मिनिमाइज कर लें. Okay. नमस्कार आप सब लोगों को नमस्कार. जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से फेसबुक चैनल के माध्यम से जितने दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा आपकी आवाज चली गई. I can't hear you. Okay. Ma'am, you are not audible, ma'am. I can't hear you. Ma'am, you are not audible. Excuse me, ma'am. लगता है अनीता जी डिस्कनेक्ट हो गई है. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? सुनीता बत्रा सर नमस्कार from SD Public School Fraternity. कैसी हैं? सुनीता आप शुरू करिए. सुनीता आप शुरू करिए. ठीक है. Shall I? Yeah, A very good day, dear ladies and gentlemen. The SD Public School Fraternity welcomes you to today's webinar. We at SD Public School endeavor to join hands with our students and parents to fight this critical time of lockdown with patience and positive outlook. As you know, that we have been conducting a lot many webinars and have organized more in the series of webinars for teachers, students, and parents to celebrate the culmination of 25 years, the silver jubilee of our school's excellence. We strongly believe that this tough time will transform us all into a better and stronger person. I request the principal of SD Public School, Pitampura, Dr. Anita Sharma, to introduce our today's speaker, who is an eminent personality. Please, ma'am, over to you. I think there is an issue with ma'am's audio. Don't worry about it. Can you see my screen? Yes, I can see your screen, sir. Shall I introduce you? I'll introduce myself. Shall I? Let me take this honor, sir. All right. And today's speaker is a very, very special person. I feel proud to introduce him. He is none other than the Ambassador, Dr. Deepak Vohra. He is special advisor to the Honorable Prime Minister of India and also to the Prime Ministers of Lesotho, South Sudan, and Guinea-Bissau, and to Ladakh Autonomous Hill Development Councils, Leh and Kargil. Today, ladies and gentlemen, Dr. Vohra is going to talk about India's winning strategy against the ongoing pandemic. And the subject of his talk is the viral war, India's powerful weapon. During his talk, you can write your questions or queries in the chat box, and those will be taken up in the last half an hour of this webinar, which will be an interactive session. And now I most humbly request Dr. Vohra to take over. Please, sir, over to you. Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir, very much. मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes. बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है. आपको भारत का ध्वज नजर आ रहा है? हाँ जी. बिल्कुल. Okay, so here we Yes, begin. sir. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने इतना अच्छा किया. आज हम बातचीत का. Oh, I have a call from Mrs. Anita Sharma. Let me tell her. मैडम हम लोग शुरू कर रहे हैं. We have started, Mrs. Sharma.
Okay. The students in the waiting room have not been added yet, Sunita. So do you want to add? Do you want me to add that? I'm a Message, co-host. message कर दो उनको, गायत्री, just message To them. to whom? Just message, chat box में message कर दो to add those students, अपने आप add हो जाएंगे. Shall I wait or shall I begin? No, no, sir, please start. Start, Thank sir. you. Over to you now, sir. Over to you, Dr. Bora. अब सबसे पहले आपको एक टेबल दिखा रहे हैं, आप देखिएगा उसमें कितने लोगों को वायरस हुआ है और कितने लोग मरे हैं प्रत्येक 10 लाख आबादी के। ये एक आज के आंकड़े हैं, इसको देखिएगा और ये बड़े मजेदार हैं, जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। पूरी दुनिया में प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों में से 36 की मौत हुई है। बेल्जियम 746, स्पेन में आप देख रहे हैं, इटली में 500, अमेरिका में जो बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता है 236, चाइना में कहते हैं 4 हैं लेकिन वो झूठ बोलते हैं, उनके फिगर्स पे आप भरोसा ना करें, और भारत में 1.5। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारत इतनी अच्छी तरह से कोरोना वायरस के साथ लड़ रहा है? अब मैं आपसे 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारा रिस्पॉन्स इतना प्रभावशाली क्यों है? दूसरा, 123 देशों की मदद हम कैसे कर पा रहे हैं? उनमें से ऐसे देश हैं जो शायद दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, उनकी भी हम मदद कर रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल ये कैसे है कि जब 100 से ज्यादा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाते हैं, विश्व बैंक के पास जाते हैं, दानी देशों के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं हमारी मदद करो, भारत नहीं जाता बल्कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है। और चौथा सवाल, वंदे भारत दुनिया का मानव इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है कि एक माँ अपने बच्चों को, और आज मदर्स डे है, सारी माओं को मुबारक हो, माँ, भारत माँ अपने बच्चों को पूरी दुनिया से वापस लाती है। शांति के समय में ये सबसे बड़ा आंदोलन है। बहुत पहले हम अपने नागरिकों को लेबनान, लीबिया, साउथ सुडान, यमन से लाए थे, लेकिन अब पूरी दुनिया से हम वापस ला रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जब बाकी देश ये नहीं कर पा रहे, भारत कैसे कर पा रहा है? तो क्या है हमारा खास हथियार जो लोग चलाते हैं, पीपल ड्रिवन? केरला का आप देखिएगा, जो हमारा एक राज्य है, पहली वंदे भारत की जो फ्लाइट थी वो केरला में लैंड की, उनका तो एग्जाम्पल पूरी दुनिया में है। देखते हैं कि हमारे हथियार क्या हैं। देखिए, मैं अपने आप को एक ऑब्जर्व एनालिस्ट कहता हूँ। ऑब्जर्व एनालिस्ट वो होता है जो पूरी दुनिया में देखता है और समझने की कोशिश करता है। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या देखा है। मेरा जन्म, मेरा आविष्कार 1951 में भारत में हुआ था। आई वेरी प्राउडली से कि मेरा भारत में निर्माण है, मेड इन इंडिया। अब स्पेशल एडवाइजर हूं प्रधानमंत्री का, well, that's a great thing। साउथ सुडान, लेसोथो, गिनी बिसाओ एटसेट्रा। प्रिंसिपल अनीता शर्मा और बाकी लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जब मेरा जन्म हुआ था 1951 में, बड़े ध्यान से ये आंकड़े सुनिएगा, भारत में 92%, 92%, 92% लोग भयंकर दरिद्रता में जीते थे। केवल 10% लोग साक्षर थे। केवल 1% महिलाएं काम करती थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और हमारी जो फिलॉसफी थी उस समय, हमारा जो दर्शन शास्त्र था, ये तो हमारी किस्मत है, हम गरीब हैं, भगवान ने हमें सजा दी है, ये सब कुछ हम कहा करते थे। और जब भी कोई समस्या होती थी हमारे देश में, तो हम विदेशियों के सामने जाके हाथ फैला देते थे ऐसे। जब तक मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, भारत भयंकर दरिद्रता को भारत ने पछाड़ दिया होगा, असाक्षरता को हटा दिया होगा, औरतों का शक्तिकरण होगा, और फिर ये नहीं होगा कि हमारी किस्मत है। आप देखेंगे हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ये परिवर्तन देख रहा हूं। क्या है हमारा हथियार? हमारा हथियार है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आशावाद, रेजिलियंस, लचीलापन। कि हमारी समस्या होती है, हम वापस आते हैं, और फिर दया। चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने कहा था जब बीमारी होती है ना, आपके दोस्त आपके साथ रहते हैं। भारत ने ये पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है। अब हमारा विश्वास कहां से आता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले है डेमोग्राफिक्स, जिसका मतलब होता है आपकी जो जनसंख्या है। मीडियन एज हमारे देश में है 28 साल, यानी मेरी तरह 65 करोड़ भारतवासी 28 साल से कम है, और मैडम अनीता की तरह
65 करोड़ 28 साल से ज्यादा, 28 साल की उम्र से कम है, मेरी तरह 65 करोड़ भारतवासी। हम दुनिया का सबसे जवान देश हैं और हमारे पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है जो प्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में है। मैं इसका मतलब समझाता हूं। अगर आपकी उम्र 15 से कम है तो आपका कंजम्पशन, खपत ज्यादा होती है, उत्पादन प्रोडक्शन कम होता है। 64 से ज्यादा है तब भी आप कंज्यूम ज्यादा करते हैं, प्रोड्यूस कम करते हैं। भारत में इस समय 100 करोड़ लोग हैं जो प्रोड्यूसिंग एज ग्रुप में है, 15 से लेकर 64। कौन रोक सकता है उनको? ये हमारी ताकत है। देखिए, हमारी मीडियन एज 28 साल है, यूरोप की मीडियन एज 44 साल है। और आपने पोप का नाम सुना होगा, क्षमा कीजिए मैं अपने बाल नहीं कटवा सका क्योंकि मेरा जो नाई है वो भी इस समय कोरोना वायरस के कारण नहीं। तो पोप ने ये कहा था कि यूरोप बुढ़ा महाद्वीप है। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन, मेरे प्रोफेसर एल्फ्रेड सोवी कहा करते थे, बहुत जल्दी यूरोप बुढ़ा महाद्वीप होगा, बुढ़े लोग रहेंगे बुढ़े घरों में और बुढ़े विचारों पर बातचीत करेंगे। जवानी वहां पर खत्म हो चुकी है। जापान में मीडियन एज 47 साल है। का मतलब जापानी आजकल बच्चे नहीं पैदा करते, भूल गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उनको सिखा देंगे कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते। अब आपको बताना चाहता हूं दूसरी चीज, साक्षरता। जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, मम्मी डैडी लोग, आप भी देख रहे हैं सब, हमारे पास इस समय 50,000 कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। जब मेरा जन्म हुआ था 500 थे। जितनी गाली देनी, आलोचना है करनी है करिए, ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन 50,000 नंबर सुन लीजिए, 50,000 विश्वविद्यालय और कॉलेज, और हमारे पास 15 लाख स्कूल हैं। आप लोगों के माइक्स ऑफ कर दीजिएगा, बहुत नॉइज आ रहा है। जिनों के पास माइक्स हैं अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। जयती जी, शायद आपके माइक से बहुत आवाज आ रही है, जरा म्यूट कर दीजिएगा। अभी तक मुझे आवाज सुनाई दे रही है। तो क्या है कि अब हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 34 करोड़, और 52% हमारी बेटियां हैं। और आप लोग कहते हैं कि हम औरतों को दबाते हैं, रुकिएगा, जब ये हमारी बेटियां वर्क फोर्स, काम की जो हमारी सेना है उसमें आएंगी, उस वक्त मुझे बताना कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी बेटियों के आगे। वो परंपरा भारत में अब खत्म हो गई है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना है ना? तो वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी में कहता है कि आपकी जो एक्सेप्शनल डिजिटल कैपेबिलिटी, आईटी में जितनी ताकत भारत की है, दुनिया में किसी देश की नहीं। हम तो ये कहते हैं, भारत में जब बच्चे का जन्म होता है हाथ में उसके आईपैड होता है। तीसरी चीज हम क्या देख रहे हैं? तीसरी हमारी शक्ति है आर्थिक शक्ति। जानते हैं कि हम दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है, जितनी देश हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं। नंबर 1 है चाइना, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी इसको कहते हैं, जो आपकी खरीदने की क्षमता है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत। $12 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 12 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। और जो निजी धन है हमारे देश में वो 8.2 ट्रिलियन डॉलर है। यानी वो पैसा, मैडम, आपने जो घर में छुपा रखा है, अपने चेहरे, अपने जिस्म पे आपने जो सोना पहना हुआ है, जो बैंक में छुपा के रखा है, जिस पे टैक्स भी नहीं दिया, तो ये जान लीजिएगा कि 8.2 ट्रिलियन डॉलर, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये विश्व बैंक के, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं, ये वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के हैं। वो कहते हैं कि आज से 8 साल के अंदर आम भारतीय के पास दुगनी प्राइवेट वेल्थ, निजी धन होगा अपेक्षा ब्रिटिश नागरिक की या जर्मन नागरिक की। अब ये बताइए कि हम ये पैसा खर्च किस चीज पे कर रहे हैं? अब ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम खर्च करते हैं ज्यादा खूबसूरत लगने पर। हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर हैं। कितने हैं? 6.5 लाख। और मालूम है हमारे देश में 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। जितनी महिलाएं देख रही हैं मुस्कुराइएगा, मुझे अच्छा लगेगा देखकर कि आप सुन रही हैं। 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। प्रिंसिपल शर्मा, आप भी जाती है, मैं भी जाता हूँ बाल कटवाने। तो 6.5 लाख गांव शहर, 1.5 करोड़ ब्यूटी पार्लर। दूसरा हम खर्च कर रहे हैं ईटिंग बेटर, अच्छा भोजन करते हैं। ये जोमेटो, टोमेटो, स्विगी, पिग्गी, ये सब आ गए हैं। खाना ज्यादा अच्छा है कि नहीं मैं नहीं जानता। और तीसरे नंबर पर हम अपनी सेहत पर खर्च कर रहे हैं। किसी गांव में चले जाओ, वहां जिम्नेजियम मिलेगा। कितने सारे, हमने पिछली बार अनुमान लगाया था कि इस समय 50 लाख जिम्नेजियम हमारे देश में है। हेल्थ क्लब या जिम्नेजियम, जिसको देखो वो जाता है, कुछ नहीं करता, खाने में जाता है, दंड लगाता है। वी आर वरीड एंड कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ।
फिर हम खर्च करते हैं कम्युनिकेटिंग बेटर। 160 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, जिसने जितनी आलोचना करनी है करिए, और 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है। आजकल तो जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है हमारे, मैं कभी कभी मिलता हूं, मेरे पास आते हैं कि साहब वो एक फोन ले लो, उंगली से जो हिलता है। सबको स्मार्टफोन चाहिए, अपनी फोटो खींचते हैं। फिर हम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत घूम रहे हैं। और चौथी हमारी जो ताकत है, क्षमा कीजिएगा मेरा कागज गिर गया तो उतारा, वो है हमारी हार्ड पावर, यानी मिलिट्री पावर। जानती हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री दुनिया में अमेरिका है, क्योंकि वो अगले 20 देशों को मिलाकर जो हम खर्च करते हैं, अमेरिका अकेला उससे ज्यादा खर्च करता है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, और चाइना के बिल्कुल साथ है भारत। 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पूरी दुनिया में। अब उसके बाद आती है हमारी रेजिलियंस, यानी जब हमें कोई तकलीफ होती है, लचीलापन, हमें कोई तकलीफ होती है, हम तुरंत वापस आते हैं। तो ये 5 वो शक्तियां हैं जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी साक्षरता है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है, हमारी मिलिट्री पावर है, हमारी रेजिलियंस। ये हमारा खास हथियार है जिससे हम इस चीनी वायरस महामारी का हम मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं इसका। भारत की जो स्पिरिट है, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं। 50 साल हम लोग डगमगा रहे थे मैडम, मुझे याद है 1950s में, 60s में, 70s में ये इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई थी, हमारी ग्रोथ बहुत कम थी, हमारे पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी। जब मैं पहली बार विदेश गया था 75 में, पेरिस पोस्टिंग पे, मुझे $8 अलाउड थे ऑफिशियली। आज तो जितना मर्जी ले जाओ। उत्तर पूर्व भारत में युद्ध चल रहा था, पंजाब में, कश्मीर में नक्सलिज्म, माओइज्म, भूखमरी थी हमारे देश में, हमारा पैसा खत्म हो रहा था और करेंसी को डिवैल्यू किया, हमारे पास राजनयिक अस्थिरता थी, हमारे पास कम्युनल वायलेंस होता, ये कम्युनिटी उस कम्युनिटी के साथ। हमने जंग लड़े 62 में, 65 में, 71 में, 1999। तेल की कीमत बढ़ रही थी, हम लोग उसको झेल नहीं पा रहे थे। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं, 1966-67 हमारी कृषि खत्म हो गई थी, बारिश नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि उस समय हम एक दूसरी ताकत के पास गए, अमेरिका के पास। श्रीमती इंदिरा गांधी गई और बोली हमें भोजन दो। और एक अमेरिकी अखबार लिखता है कि भारत का नया नेता, क्योंकि वो नई प्रधानमंत्री बनी थी, भारत का नया नेता भीख मांगने आया है। घमंड देखो उन लोगों का। हमने 9 मिलियन 90 लाख और 11 मिलियन 1 करोड़ 1 लाख टन, हम 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया। तो उनके पानी में जहाज आता था। अंग्रेजी में मैडम एक कहावत है, दैट आई एम लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। उस समय हम शिप टू माउथ जीते थे, पानी का जहाज अनाज लाता था और हम जिंदा रहते थे। और फिर नारा दिया कि 1966 में सोमवार के दिन हम रात को भोजन नहीं करेंगे। मैडम अगर आप भूख जानना चाहती है ना क्या है, मुझसे पूछिए। वो पूरा साल 1966, 15 साल का मैं था, 1 साल में भूखा सोया हूं सोमवार को। इसलिए नहीं कि हम खाना खरीद नहीं सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय आपत्ति थी उस समय, डिसिप्लिन के कारण मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूखा सोऊंगा। और जो दुनिया हम पर हंसती थी, आज आपका देश भारत जो भीख मांगता था अनाज की, आज दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है खाद्य पदार्थों का। ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने किया, मैंने किया, वैज्ञानिकों ने किया, हमारे फार्मर्स ने किया, हमारे लीडर्स ने किया, बैंक्स ने किया, सब ने किया। 1951 की एक कहानी आपको और बताता हूं। विदेशी मुद्रा हमारी खत्म हो गई थी, आपको याद होगा। हमारे पास केवल 1 बिलियन होता है, हमारे पास 1000 मिलियन, 10,000 लाख हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। 1 बिलियन से कम बची थी। 2 हफ्ते का इंपोर्ट हम कर सकते थे, उसके बाद खत्म हो जाते। हमने कई देशों से कहा कि हमें आप थोड़ा सा ऋण दे दीजिए, लोन दे दीजिए, और जानते उधार दे दीजिए। उन्होंने कहा आप पे भरोसा नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने 150 टन आपका अपने देश का सोना गिरवी रखा इंग्लैंड में और स्विट्जरलैंड में, और तब उन्होंने हमें $60 करोड़ उधार दिए। हम पे भरोसा नहीं था। और आज वही देश आपका जो उस समय कहता था अच्छा मेरा सोना रख लो, मुझे पैसे दे दो, आज हमारे पास 500 बिलियन रिजर्व्स पे हम बैठे हैं। मुझे याद है 1991 में जब सोना गिरवी रख रहे थे, मेरे बॉस उस समय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में सैम पिट्रोडा थे। मैं उनके पास गया और फूट फूट के रोया। मैंने कहा सैम, इस देश के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख के कहा, दीपक
ये भी गुजर जाएगा समय, वो गुजर गया, हमें ताकत मिली उससे, हमें भरोसा मिला। फिर 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने परमाणु जो थे विस्फोट किए, और छोटा देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हमें आके कहता था जी अगर ऐसा करोगे तो हम मदद करनी आपकी बंद कर देंगे, आप वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाओगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और हमने उस समय उनसे क्या कहा कि देखो तुम पिस्सू से देश हो, छोटे से, हमारे साथ पंगा लेने की मत कोशिश करो, हमें आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। अब पिछले 20 सालों में भारत की जो भावना, राष्ट्रीय भावना है, किस तरह उभरी है। जानते हैं हम किसी देश से अब मदद नहीं मांगते। पिछली बार, आखिरी बार जब हमने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन लिया था, उधार लिया था, वो था 21 साल पहले, 1999। अब नहीं लेते। अब हमारे पास सुनामी होती है, हमारे पास भूकंप आता है, कुछ होता है, बाढ़ आती है, हम खुद कहते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी देश से हम मांगते हैं। 2018 में केरला में बाढ़ आई और कई देशों ने कहा मदद करेंगे, हमने कहा घर बैठिए, अपने लोगों को बिस्किट खिलाइए, हम खुद करेंगे। और 2011 से हम ज्यादा देशों की मदद करते हैं, ना कि वो हमें पैसा देते, हम ज्यादा पैसा देते, उनसे नहीं लेते। और आपको याद है मुंबई पर जो हमला हुआ था 2008 में, छाती फुला के कहिए कि उसकी बात फिर कभी नहीं हुआ, ना होगा, क्योंकि अब हम में वो क्षमता है। और कोई हमसे पंगा लेगा तो जैसे आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, उसके घर में घुस के मारेंगे उसको। पिछले साल आपका गरीब मुल्क भारत अमीर रूस को 7,000 करोड़ का ऋण देता है, कहता है मैं जानता हूं कि आपके ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए, आपकी समस्या है, तो लो भारत जो आपका दोस्त है 7,000 करोड़ रुपया मैं देता हूं। ये जब इतिहास लिखा जाएगा ना इस शताब्दी का, लोग कहेंगे 2019 में भारत की ताकत देखने वाली थी। और फिर जो जम्मू कश्मीर में वो आप सब जानते हैं। मैं ऊर्जा के बारे में आपको बताना, जिसे हम कहते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट। कितना पैसा हम तेल पे खर्च करते थे जब तेल की कीमतें बढ़ी थी ना, पहली बार इन 1973 में, उसके बाद 1977, उसके बाद 2003, 2008, हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई स्तर जो था 40% पहुंच चुका था। $150 पर बैरल तेल हो गया था, जब $20 है। उस समय हमने निर्णय किया कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तो फिर हमने रिन्यूएबल, नई एनर्जी जिसे रिन्यू किया जा सकता है, उस सूर्य ऊर्जा, विंड ऊर्जा, उस पे हमने जोर लगाया। और आज 40% जो हमारे देश में ऊर्जा खर्च होती है, उत्पादित होती है, वो न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस से दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत का हिस्सा 40%, और तेल पे हमारा रिलायंस कम हो रहा है। फिर जो आपकी मस्तिष्क की शक्ति है, पहली 3 जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760 में, 1850 में, 1940, 1930 में, हम उसमें भाग नहीं ले सके क्योंकि इस समय विदेशों का राज था हमारे देश भारत पर इस समय जो चौथी रेवोल्यूशन हो रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें भारत भाग ले रहा है। बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे AI रेवोल्यूशन कहते हैं, पहला सेंटर अमेरिका में खोला, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा भारत में खोला है। यूरोप कहाँ है? अभी शौचालय में है, थोड़ी देर में आएगा। हमने स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में जो लोग शौच खुले में करते थे वो खत्म कर दिया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है उन लोगों को बीमा देने की जिनके पास वो साधन नहीं है। और बेटा अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये तस्वीर के बारे में भी बताता हूँ। 2015 में हमने ये अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 पेरिस में, मैं वहीं था उस समय। आपके प्रधानमंत्री ने नवंबर 2015 में कहा कि सुनिए, हमारा देश ये वचन देता है कि 7 साल के अंदर हम 20 गीगावाट, 1 गीगावाट के अंदर 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन वाट होते हैं, हम 7 साल के अंदर 20 गीगावाट सूर्य ऊर्जा का उत्पादन अपने देश में करेंगे। मैं वहां पर था, लोग हम पर हंसे मुझसे, टीवी चैनल ने कहा अरे नहीं हो सकता, भारत कभी नहीं कर पाएगा। जानते हैं बेटा आप लोग, 4 साल टारगेट से पहले हमने 21 गीगावाट ऊर्जा पैदा करके दिखा दी, सूर्य ऊर्जा अपने देश में। मैंने उस टीवी स्टेशन को फोन किया, मैंने कहा कुछ कहना चाहते हो? बोले हम निरुत्तर है, हमें शर्म आ रही है। कि शर्म आनी चाहिए, डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जो आप लोग देश की आलोचना करते हैं ये जाने बिना कि भारत की ताकत क्या। ये देखिए, ये उस समय की तस्वीर है, जब कार्टून है, जब सरदार मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे, मिसेस गांधी चेयरपर्सन थी। तो ये उस समय ब्रिटानिया का
प्रधानमंत्री झुक के सलामी दे रहा है और कह रहा है मुझे पैसे दे दो, मेरे देश के पास पैसे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में यह कार्टून आया था 7 साल पहले, ये मैंने नहीं किया। ये देखिए बवारिया जर्मनी का हिस्सा है। बेटा हमने तो ये सब सुना था कि विदेशियों को आना चाहिए भारत में पूंजी निवेश करने, इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन जर्मनी तो भारत के अखबार में कह रहा है कि भारतवासियों मेरे देश में आओ, आप इन्वेस्ट मेरे देश में करो। क्या अफीम खा के कहते हैं वो लोग कि मालूम है भारत की आर्थिक शक्ति। ये देखिए, ये एक इंडिया टुडे में इश्तेहार आया था 2015 में। मिस्टर शर्मा ये बता रहे हैं, ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं लंदन में और भारतीयों को कह रहे हैं आप उसमें खरीदिएगा। शायद ये मलाई वाला जो भागा हुआ है, मलाया फलाया जो भी इसका नाम है, इसने वहीं पे खरीदी होगी। यानी भारत वासियों को कह रहे हैं कि आप लंदन में प्रॉपर्टी खरीदो। वाह रे वाह, दुनिया कैसे बदल गई है। देखिए 2020 के बाद दुनिया याद रखेगी कि चाइना ने क्या दिखाई है। चाइना ने अपनी ताकत दिखाई है आपका नुकसान करने की, और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है दुनिया का इलाज करने की। यही दुनिया याद रखेगी। किताब देखिएगा जरा, इस किताब का शीर्षक है हमारा समय आ चुका है। ये 2 साल पहले छपी थी, ये मैंने नहीं लिखी। इस किताब का शीर्षक है हमारा समय आ गया, भारत किस प्रकार से अपना स्थान बना रहा है दुनिया में। ये एक अमेरिकन राजनयिक एलिस आयरस ने लिखी थी, मौका मिले तो खरीदिए पढ़िए। हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस, किस तरह से अब भारत आगे बढ़ रहा है और सारी दुनिया खड़ी होके ताली बजा रही है। तो बेटा एक चीज होती है राष्ट्रीय भावना। यूरोप में ये बनी थी 17, 18, 19वीं शताब्दी में, जब उन्होंने एक्सपैंड किया, कॉलोनीज बनाई, वहां आर्थिक क्रांति आई। फ्रांस में हुई थी 18वीं शताब्दी में। यूएस में, अमेरिका में हुई जब उनकी जंग हुई थी स्वाधीनता की, उसके बाद सिविल वॉर, उसके बाद जब उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ा। जापान में हुई थी, उसको माइजी रेस्टोरेशन कहते हैं। रशिया में हुई 1919 में बोल्शेविक, चाइना में हुई 1949। और मैं समझता हूं, बहुत हमने अनुसंधान किया कि भारत में कारगिल की जो लड़ाई थी 1999, 21 साल पहले, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय भावना उड़ पड़ी है, इतनी ऊंची जा गई है कि अब देख नहीं पाते। जो हमने जवाब दिया दुश्मन को, वो घबरा गया, पूरी दुनिया हैरान हो गई। और इतना बता दूं, हम कहते हैं ये तो मार्जिनाइज्ड है, पिछड़े लोग हैं, इस वर्ग के हैं, उस वर्ग के हैं। सबसे ज्यादा भारत की मदद उन लोगों ने की थी। और ये जो सब परिवर्तन आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जो 15 साल दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 15% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 200 साल उन्होंने बाकी 85% पर राज किया था। हम पर भी राज किया था 200 साल। दुनिया पलट रही है। इन लोगों की ताकत खत्म हो गई है, यूरोप की, इनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, इनकी आर्थिक शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन घमंड नहीं टूटा। 2002 में मैं स्पेन में आपका राजदूत था, उनके पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, तो स्पेन का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहता है, अरे स्पेन की तो किस्मत है कि हम धनी देश होंगे। अच्छा, बड़ा घमंड है। 10 साल के बाद वॉशिंगटन जाता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वहां था, हमारे सामने हाथ जोड़ के कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है जी, मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा, अरे तेरा तो भविष्य था, तेरी तो किस्मत थी कि तू डोनर कंट्री बनेगा। ठंडा हो गया, लेकिन घमंड नहीं गया। जब पैसे मिल गए, ये नहीं बोला कि स्पेन बच गया, बोला अजी दुनिया बच गई है, यूरोप बच गया। घमंड उनका अभी भी देखो। भुज में आपको याद है 2001 में भयंकर भूकंप आया था, 7-8 था वो रिक्टर स्केल पे। तो उस समय मैं स्पेन के बहुत खूबसूरत आइलैंड में, महाद्वीप में था, कैनरी आइलैंड, तो वहां पर एक रेडियो स्टेशन वाली मैडम मेरे पास आई, कहती है आप यहाँ पर पैसे मांगने आए हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो कहती है फिर क्यों आप? मैंने कहा मैडम अब ये क्या जवाब दूं, मैं आया हूं ताकि आपके देश में कुछ पैसे खर्च कर सकूं और आपकी आर्थिक जो है स्थिरता उसको और बढ़ा सकूं। 2011 में इंग्लैंड में वहां के जो पॉलिटिशियन, राजनायक है, पार्लियामेंट की डिबेट पड़ी है, बड़े नाराज हो गए जब हमने कहा आपकी मदद नहीं चाहिए। हमने कहा आपकी मदद तो हमारे लिए मूंगफली है, मूंगफली खाने का हमें शौक नहीं, किसी और को दिए। वो तो भयंकर रूप से बहस करने लगे, आग बबूला हो गए कि ये देश, ये कालों का देश हमसे मदद नहीं ले रहा। पढ़िएगा जो उनके पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई थी। तो इसका परिणाम क्या है? डिप्रेशन समझते हैं, डिमोरलाइजेशन, अकेलापन बढ़ता जा रहा है पश्चिमी देशों में, जबकि भारत में ऊर्जा है, हमारे पास आत्मविश्वास है। जानते हैं इंग्लैंड में, यूके में एक मंत्री है अकेलेपन के लिए। वो कहते हैं हमारे देश में 90 लाख ऐसे लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, तो उन्होंने एक मंत्री बनाया है। तो मैंने कहा कि कैसे डील करोगे? बोले कि हम कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो बहुत अमीर विधवाएं हैं, औरतें हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन अकेलापन है,
उनके साथ जाके समय बिताएं, उनकी फ्रेंडशिप दे। तो मैंने कहा भाई अगर बहुत पैसा है तो मैं भी जाता हूँ। बोले अकेलापन तो है लेकिन इतना अकेलापन नहीं है कि आप भी यहाँ पे आ जाओ। तो मजाक कर रहा था। तो बेटा भारत का अब उभरता हुआ अंतरराष्ट्रीय जो हमारी छवि है, देखिएगा 2015 में याद है एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का प्रस्ताव हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं एंड 177 ने को स्पॉन्सर किया। हमें उस पर वोट करने की जरूरत नहीं थी। यूएन के इतिहास में सबसे बड़ा को स्पॉन्सरशिप था। और एक यूरोपीय मंत्री, जब बहस चल रही थी मैं सुन रहा था, कहता है मेरा देश योगा का समर्थन करता है क्योंकि भारत दुनिया का गुरु है, भारत विश्व गुरु है। अब वो कहता है तो हम ताली बजाते हैं, हम खुद कहते हैं तो लोग कहते हैं अजय अजय जी नहीं कहना चाहिए, नहीं है, ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों डरते हैं हम कहने से? 2015 जुलाई में यमन में गृह युद्ध लगा, लगभग 42 देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। यमन वालों ने कहा अगर इनको निकालना है अपने नागरिकों को, ना रूस आएगा, ना चीन आएगा, ना फ्रांस आएगा, ना इंग्लैंड आएगा, ना अमेरिका आएगा। हमें अगर भरोसा है तो केवल भारत पर। हमारी सेना गई और वहां से कई हजार लोगों को निकाल के लाई। उसी साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए मैं पेरिस गया था। नवंबर में फ्रेंच जो इमिग्रेशन वाला हवाई अड्डे पे होता है मेरा पासपोर्ट देख के कहता है आप तो भारत के राजदूत है। मैंने कहा, कहता है आप तो हमारे 500 लोग फ्रांस से निकाल के लाए थे। मैंने कहा भाई गलती होगी तो वापस ले जाते हैं। तो हंस पड़ा और फिर मेरे को देख के कहता है सर एक मेरा संदेश पहुंचा दीजिएगा। मैंने कहा क्या? तो सलाम करके मुझे कहता है थैंक यू इंडिया। एक फ्रांसीसी मुझे कह रहा है थैंक यू इंडिया। फ्रांस के पास ताकत नहीं थी वहां जाने की, मेरे पास वो शक्ति थी। 1969 में बेटा ये जो इस्लामिक देशों का संगठन है OIC, उसकी स्थापना हुई थी मोरक्को में। हमें बुलाया गया था कि फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में आओ, हम गए। लेकिन एक बार हम वहां पहुंचे, हमें बेइज्जत किया गया। हमसे कहा गया आप नहीं आ सकते। हमारे पास ताकत नहीं थी, हम चुपचाप लौट आए। हमने कहा उनको कि गलत बात है, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और 50 साल के बाद पिछले साल जब उनकी 50वीं वर्षगांठ थी तो उन्होंने एक गेस्ट ऑफ ऑनर, मुख्य अतिथि किसको बुलाया था? आपके देश, मेरे देश भारत को, क्योंकि अब वो आपकी ताकत समझते हैं। बेटा जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर आप लोग कभी न्यूयॉर्क जाइए तो चढ़िए, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर, उसके ऊपर एक सोलर पार्क लगा है। 193 मेंबर हैं, 193 सोलर पैनल्स हैं और उस बिल्डिंग की ऊर्जा सूरज से आती है। और जानते हैं सोलर पार्क का नाम क्या है? महात्मा गांधी पार्क। वो भारत का तोहफा है संयुक्त राष्ट्र संघ को। ये चीजें समझने वाली हैं बेटा। देखिए जो परिवर्तन आप बेटा, बहुत सालों तक दूसरों ने हमारी किस्मत देखी है, लेकिन अब हमें अपना अतीत याद है। जिस देश को अतीत याद नहीं है, पास्ट याद नहीं है, उसका भविष्य नहीं होता। हमें याद है बेटा, और अब हम ये कसम खाते हैं कि अब विदेशी हमारी तकदीर नहीं लिखेगा, हम खुद लिखेंगे। मैं अपने कान को हाथ लगाता हूं, भगवान से माफी मांगता हूं ये कहने के लिए कि हम खुद अपनी तकदीर, अपना भविष्य लिखेंगे, क्योंकि हमने जो गलतियां की थी वो हमें याद है। ये हमारा एक प्रण है, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिज्ञा है। और आप लोग जो नौजवान हैं, सिर हिलाइए। मैं 5-6 को स्क्रीन पे देख रहा हूं। आप सहमत हैं कि अब भारत की तकदीर हम खुद लिखेंगे? सिर हिला के हाथ उठा के मुझे बताइएगा, सहमत हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनीता जी, अनीता जी, मनीषा जी, जयती जी, थैंक यू वेरी मच। नव्या जैन, खुद लिखेंगे हम इस देश का भविष्य ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। देखिए अब कोई नहीं लिखेगा हमारे लिए, ये हमारा भविष्य है। जैसे ये लोग, डेलॉयट कंपनी का नाम सुना आपने? इन्होंने एक सर्वे किया था पिछले साल 2019 में कि हमारे जो मिलेनियल्स हैं, बच्चे जिनका जन्म 1985 के बाद हुआ, पोस्ट मिलेनियल्स 1995 के बाद जिनका जन्म हुआ, उनके ऑप्टिमिज्म, आशावादी हैं कि निराशावादी हैं, और वो क्या चाहते हैं। और उन्होंने जो किया था 42 देशों में 16,000 लोगों को इंटरव्यू किया। तो सबसे नीचे जहां तक आशावाद है, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, और सब पे टॉप पे जानू कौन सा देश था? आपका देश भारत। हम लोग तो कहते हैं हमारे बच्चों को मालूम नहीं है, उनके संस्कार सही नहीं है, उनके इरादे सही नहीं है। उन आप ही के बच्चों ने, आप लोगों ने बेटा जो मिलेनियल्स हैं, आपने कहा उस समय कि घर होना, गाड़ी खरीदना, अच्छा पति होना या पत्नी मिल जाना, ये सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन सबसे बड़ी, हमारा सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली जो हमारा दृष्टिकोण है, वो है कि समाज को हम कुछ लौटाना चाहते हैं।
जो कुछ समाज ने हमें दिया। तो अपने बच्चों को मत समझिए कि वो बेवकूफ है, ये उनका आउटस्टैंडिंग प्रायोरिटी है, गिव बैक टू सोसाइटी। गोल्डमैन सैक्स का भी आपने नाम सुना है, वो क्या लिखता है कि जो 45 करोड़, ये मैं नहीं लिख रहा, ये गोल्डमैन सैक्स लिख रहा है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए लिखने के लिए, जो 45 करोड़ भारतवासी हैं जिनका जन्म 1995 के बाद हुआ, इतना है इनकी पढ़ाई, इनकी आर्थिक शक्ति, ये भारत का इतिहास ऐसा लिखेंगे अगले 20 सालों तक की दुनिया हैरान हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि जो ये अमेरिका का राष्ट्रपति था बराक ओबामा, जो कुछ देर पहले राष्ट्रपति था, ये 3 बार भारत क्यों आता है? मिसेस शर्मा, इसकी कोई फ्रेंड है इंडिया में? क्यों आता है ये 3 बार? ये देखने आता है कि भारत में क्या क्रांति आ रही है, और जाके अमेरिकी बच्चों को कहता है भाई होशियार हो जाओ। मैं तो बेंगलोर होके आया, वहां मैंने देखा करोड़ों भारतीय बच्चे को, पूरे भारत की बात कर रहा था, करोड़ों भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हरा सके। सतर्क हो जाओ, उसने अमेरिकियों को कहा। ये एक एडलमेंट बैरोमीटर है, इसमें होता है कि लोगों का विश्वास कितना अपने देश पर, कितने परसेंटेज लोग हैं, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस एक्सेट्रा। भारत में 79, सिंगापुर में 62, रशिया में 30%। सबसे ज्यादा भरोसा अपने देश पर आप लोगों में है। और फिर पूछा गया इसी बैरोमीटर में, ये 2020 का है, कि 5 साल में आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आपकी स्थिति और बेहतर होगी? जापान में केवल 15%, जर्मनी में 23, रूस में 34, यूएसए में 42, और आपके देश भारत में 77%। है ना गजब की बात, है ना ये गर्व की बात कि हमारे देश में क्या हो रहा है? बेटा, ये भारत की नई ताकत है, ये भारत की उभरती हुई भावना है। एक कहानी आपको बताता हूँ बेटा। ये गांव वाला 1999 कारगिल वॉर में बिहारी था, ये फौज में भर्ती होने के लिए आया। लोग ने कहा बेटा तू फौज में नहीं जा सकता, आप तो विकलांग हो, उसकी दोनों टांगे कटी हुई थी घुटनों के नीचे, ट्रेन एक्सीडेंट में, आप फौज में कैसे जाओगे? मिसेस शर्मा वो जवाब देता है कि साहिबान, मैं फौज में आया हूं दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन से भागने नहीं। देखिए भारत की जो भावना है, जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास, अरे कौन टेक सकता है आपके सामने? ना उसका जन्म हुआ है, ना जन्म उसका हम ये देखिए। ये तस्वीर है सिक्किम में जो भयंकर अर्थक्वेक आया था 2011 सितंबर में। मैं वहां गया था दूरदर्शन टीम के साथ। हम देखना चाहते थे कि किस तरह से राहत का कार्य हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। 300 जगह से सड़क टूटी हुई थी, गैंगटॉक से लेकर सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, जिससे हम खाद्य पदार्थ भेजते हैं सिक्किम को, हेलीकॉप्टर से कब तक दे दे। तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि पता करिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कितना समय लगेगा सड़क खोलने के लिए। जानते हैं, मैं था वहां पर, मैं जानता हूं, उन्होंने कहा कि 6 सप्ताह कम से कम। 6 सप्ताह कौन वेट कर सकता है? तो पीएम साहब ने कहा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क बनाते हैं संगठन जो है, उनसे पूछा। हमने पूछा, उनके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मैं सर्वे करता हूं, उसके बाद बताऊंगा कितना समय हमें लगेगा। जानते हैं बेटा, 20 घंटे के बाद, मैं था वहां पर, उनका फोन आया 20 घंटे के बाद कि सड़क खुल चुकी है, 300 जगह से मरम्मत हो चुकी। अरे ये ताकत है भारत की। इस बच्चे को देख रहे हो किस तरह से ये खड़ा हुआ है, इसने केवल हेलमेट पहनी है और कुछ नहीं है, पैराशूट नहीं है, ये नहीं है। और दाहिनी तरफ नीचे जो आप देख रहे हैं वो तीस्ता नदी है। और बेटा ये बच्चा इस समय ड्रिलिंग कर रहा है, फिर बारूद भरेगा, फिर बारूद फटेगा, पहाड़ पीछे हटेगा, ये सड़क बनाएगा। ये फोटो मैंने खींची थी, मैंने अपने मोबाइल फोन से ली, किस तरह से ये काम कर रहा है। और मैं चिल्ला रहा था बेटा ध्यान से, ध्यान से। 15-20 बच्चे हमारे जो थे बॉर्डर रोड्स के, वो शहीद हुए ये काम करते हुए। एक के घर में मैं गया, एक सिक्किमीज माँ से मिला, 55 साल की थी। मैंने कहा बहन मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके घर आया हूँ इस समय जब एक आपका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। सरकार की तरफ से आपको मुआवजा मिलेगा, फौज देगी, बॉर्डर रोड्स देगी, सिक्किम सरकार देगी। मैंने अपनी तरफ से एक चेक दिया। मैंने कहा और कुछ कर सकता हूँ? बोली आप तो विशेष सलाहकार हैं ऊंचे लेवल पर, मेरे एक छोटा बेटा 22 साल का, उसको नौकरी दिलवा दी। मैंने कहा बहन क्यों फिक्र करती हैं, दिल्ली में जाके मैं बड़ी बड़ी कंपनियां, मेरे दोस्त हैं, किसी से कह दूंगा नौकरी दे देंगे। ये 2011 की बात है बेटा। और वो मुझे कहती है भाई साहब मैंने आपको निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए नहीं कहा, मेरा बड़ा बेटा शहीद हुआ था देश के लिए, छोटे बेटे को भी फौज में या बॉर्डर रोड्स में भर्ती करो ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए। जैसे मेरी आंखों में पानी आया, मैंने उसके हाथ पकड़े और मैंने कहा माँ तुझे सलाम, और अगर मेरा जन्म हो ना फिर भारत में, तो तेरी जैसी माँ की कोख से मैं जन्म लेना चाहता हूँ। और उस समय मैं ये समझ गया कि हम भारतीय क्यों हैं।
हम भारतीय इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। मैंने समझ लिया, मुझे सबक मिला उस समय। बेटा ये पहली बार है मानव इतिहास में 1/4 देश की जनसंख्या स्कूल या कॉलेज में है, 2/3 जनसंख्या काम कर रही है, काम करने के लायक है। और ये एक जनरेशन है जो टेक सेवी, टेक्नोलॉजी, बस कहते हैं बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। एक्सट्रीम पॉवर्टी, भयंकर दरिद्रता को जो हम हटा रहे हैं, पहली बार मानव इतिहास में प्रति सेकंड एक भारतवासी को हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से हटा रहे हैं। और पहले जो था जी ये तो हमारी किस्मत है, ये होगा वो होगा, आज हमारे पास आत्मविश्वास है। आज हम कहते हैं ले आओ, हम बता देंगे तुम्हें कि हम कैसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। जानते हैं स्वच्छ भारत योजना में हमने प्रति 2 सेकंड एक टॉयलेट, एक शौचालय बनाया। हमने प्रति सेकंड 2 बैंक अकाउंट खोले, पहली बार मानव इतिहास में। प्रति 15 मिनट हमने 1 किलोमीटर सड़क बनाई। और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रिस्पांस चाइनीज वायरस का हमारा है। बेटा एक इकोनॉमिक्स में होता है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, यानी आप कुछ काम करते हैं उसका परिणाम वो है जो आप चाहते हैं, लेकिन ऐसे परिणाम है जिनके बारे में आप जानते नहीं, कभी आपने सोचा नहीं था कि ये भी आ सकते हैं। तो क्या होता है जब हमने कुछ किया, मिसाल के तौर पर कौन कहता है कि जब हमने स्वच्छ भारत का मूवमेंट लॉन्च किया टॉयलेट बनाने का, हमको मालूम था कि कोरोना महामारी होगी। लेकिन मिसाल के तौर पर ध्यान करिएगा प्रिंसिपल शर्मा, अगर हर घर में टॉयलेट ना होता, हर भारतवासी के पास टॉयलेट तक पहुंचने की संभावना ना होती, और 60% आपके देशवासी सुबह नदी के किनारे या खेत में या गांव में या कहीं पर भी जाते, क्या आपकी लॉकडाउन चल सकती थी? जब सुबह प्रेशर पड़ता है तो कोई लॉकडाउन नहीं चलता, सब लोग जाना, आज जाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक अकाउंट ना होते सबके पास, हमने ये नहीं सोचा था कि महामारी होगी। राजीव गांधी ने कहा था हर 1 रुपया जो हम खर्च करते हैं गरीब के लिए, केवल 15 पैसे उसके पास पहुंचे। मैंने तो उनके साथ काम किया था, वो सच कह रहे थे, बहुत कम उनके पास पहुंचते थे पैसे, बाकी सब खाए जाते थे। अब हमने डायरेक्ट बेनिफिट किया, बैंक अकाउंट सबके पास है, चाहे गैस के लिए है, चाहे उनकी मदद के लिए है, चाहे 500 रुपया है, अब लीकेज नहीं होता। और हमने दिखा दिया है बेटा, दिखा दिया है दुनिया को कि किस तरह से, देखिए पाकिस्तान ने पंगा लिया, उसके घर में घुस के मारा। मैं आप सबसे कहता हूं पढ़िए आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए वो क्या कह रहा है कि 7वें पाताल में भी छुपोगे वहां से निकाल के लाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा, क्योंकि माफ करना चुन चुन के हिसाब लूंगा, माफ करना मेरी फितरत नहीं। दिखा दिया। मलेशिया के बुजुर्ग प्रधानमंत्री 95 साल के हैं, कश्मीर में हमारी आलोचना की, हमने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया उनसे, उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, प्रधानमंत्री की नौकरी चलेगी। हमने बता दिया ये भारत अब वो नहीं है। प्यार से आओगे, प्यार से हम आपसे बर्ताव करेंगे, आंखें दिखाओगे तो हमारी आंखें आपसे कहीं बड़ी हैं, अपनी ताकत हम दिखाएंगे। जिस तरह से पोलियो और चेचक को हमने पछाड़ दिया बेटा, चाइनीज वायरस को भी, महामारी को भी हटा देंगे, हम डरते नहीं हैं। और क्या हो रहा है आजकल, ज्यादा भरोसा है आप में, नागरिकों में और सरकार में, उन देशों में जिन्होंने अच्छी तरह से वायरस से डील किया, मिसाल के तौर पर सिंगापुर, साउथ कोरिया, भारत। और जो देश घबरा रहे हैं और जानते नहीं है, चाइना, यूएस, इटली, फ्रांस, स्पेन, वहां पर भरोसा खत्म हो रहा है। हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके वैज्ञानिक हैं, उनके लिए हमारा भरोसा, हमारी इज्जत बढ़ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में फरिश्ते नहीं देखे थे। जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ इंस्पेक्शन के लिए, मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूँ, मैं अब फरिश्तों को देखता हूँ बेटा, उन्होंने सफेद कोट पहने हुए हैं। और अब लोग कह रहे हैं कि जहां पे भी हैं वहीं से काम करिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि अभी तक तो आपका सारा ये सिस्टम था कि ग्रोथ हो, आगे बढ़िए, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, अब मानव के लिए, इंसान के लिए, उसकी स्थिति के सुधार के लिए आप एक नया सिस्टम बनाइए। और सारी दुनिया कह रही है कि भारत इसमें नेतृत्व करेगा। सो एज एन इंडियन मैं कहता हूं, भारतवासी होने के नागरिक के नाते आपको क्या करना चाहिए बेटा, भरोसा रखो, विश्वास रखो अपने आप में, अपनी सभ्यता में, अपने देश में। ये जो है ना निराशावाद, इसको मत छाने दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि निराशावाद से आपको ताकत नहीं मिलती, वो आपकी ताकत खींच लेता है। आप अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। डर से आगे बढ़ो, सुना है ना आपने, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे
जीत है। किसी ने महात्मा गांधी से पूछा था, बापू दुनिया को कैसे बदलूं? महात्मा गांधी ने क्या जवाब दिया था? दुनिया को बदलना चाहते हो बेटा, अपने आप से शुरू कर। अरे वो परिवर्तन जो लाना चाहते हो, अपने दिल में वो परिवर्तन लाओ। लिसोथो के प्रधानमंत्री जिनकी मैं सेवा करता हूँ, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम, ये मेरा क्षेत्र नहीं। बोले बताओ, तुम हिंदुस्तानी हो। अच्छा सर, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये करता। 3 महीने बाद मैं वापस गया, उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, एम्बेसडर तुम्हें याद नहीं है, आपने कहा था ये करो, मैंने किया और वो समस्या का समाधान हो गया। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो फिर मुझसे कहता है, एम्बेसडर दीपक क्या तुम भगवान हो? मैंने कहा नो सर, आई एम नॉट गॉड बट आई एम एन इंडियन, दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बहुत जोर से ताली बजाने लगे और हंसने लगे। तो बेटा ये याद रखिए कि किस तरह से आप लोग दयालु हैं। आप सबका काम कर रहे हैं, आप लॉकडाउन ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम बहुत दयालु हैं, हम दयाशील हैं, हम बहुत जेनरस लोग हैं। वो जो कहते हैं ना, असम ने जो पाराविधि गड़िया लागू जैसा उधार शारी जाना वासुदेव कुटुंबकर, जो कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भारतीय क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया एक है, एक परिवार है, सबकी मदद करो। बेटा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट हमारे देश में महात्मा गांधी का जन्म होता है। और ये जो आप लोग ने प्रतिज्ञा की है कि आप भारत की तकदीर लिखेंगे, तो मैं भी एक प्रण करता हूं, कुछ देर बाद मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा और जहां पे मेरी कब्र होगी या मेरी अस्थि बिछाई जाएगी, वहां पे मैंने कहा है कि निशान लगा जी, दीपक वोरा निर्माण भारत में हुआ था 1951 में, हमेशा के लिए, ये कभी मरेगा नहीं। उसमें यही लिखा हुआ है, अपने हाथों से मैंने लिखा। जब साहब ने देखा उनकी आंखें भर आई। अपने हाथों से मैंने लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू। यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आप जानते हैं संतरी रंग है, उसका मतलब होता है साहस और शक्ति। कभी मत भूलिए, भारत की राष्ट्रीय भावना बहुत ऊंची हो चुकी है। वो भारत खत्म हो गया, ये नया भारत है। अब हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। आप सबको आभारी हूं कि आपने समय मेरे साथ बिताया। ये मेरा ईमेल है thedeepakvora@gmail। यदि आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, आप प्रिंसिपल साहब से कहिएगा और मुझे ईमेल करिए या मोबाइल पे मैसेज भेजिएगा। फोन मत करिएगा, SMS करिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं और यदि आपके पास कुछ प्रश्न है तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिंसिपल साहिबा उनका जवाब देंगी। That was really, really informative. Thank you. And meeting sessions. एक एक करके बोलिएगा, स्पीक वन बाय वन और अपना परिचय दे दीजिएगा। I am Sunita Batra from SDPS Public School, Pitampura. And it was really interesting to learn these facts, out of which for some we were unaware of. जोश नहीं आया? Very well, sir. Definitely, yes. बहुत जोश आया. And listening to you was something out of the world experience. Thank you. And now, if you allow us, we are to take up some questions from our students. They have really been waiting enthusiastically for this hour. Surely. Ma'am, shall I start with the questions from? और मम्मी डैडी लोग भी देख रहे हैं तो उनसे भी बातचीत कर। मम्मी डैडी लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम? Yes, sir. Yes, it's live on the Facebook. आजकल तो कुछ काम करने और है नहीं, घर ही पे बैठते हैं, तो मम्मी डैडी भी देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। Okay, so we have Yashika Jindal. Yashika Jindal, please come in and ask your questions, beta. Ask your question. अपना परिचय देना। याशिका जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या करती हैं? Hello, sir. My name is Yashika Jindal and I am from 11th class. So my question is that, as we all know that India is helping all other countries of the world by sending aid in form of pharmaceutical and other items like hydroxychloroquine, paracetamol, etc. So had you ever expected that such a time will come where most powerful countries of the world will be asking for help from India? And what are the steps through which India is going to help them? बेटा 2004 से हम लोग किसी से भी मदद नहीं लेते हैं। जब भी कोई आपत्ति होती है हम खुद करते हैं। आपको तो ये पता है, आपने किसी विदेशी एनजीओ को नहीं देखा यहाँ काम करते। अच्छा एक चीज करिएगा, कुछ हमारी विदेशी एनजीओ हैं, एक्शन एड और ऑक्सफैम और सेव द चिल्ड्रन, इनकी वेबसाइट्स पे जाइएगा और वो सब कहते हैं कोरोना वायरस के लिए आप कंट्रीब्यूशन करिए।
फिर मैं पढ़ता हूं कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसमें लिखते हैं हमने दीपक वोरा के वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। अरे वाह वाह, उसके नाम पे तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो लोगों से। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम सब खुद करेंगे। एक चीज आपको बता देता हूं, जो भूखे लोग थे ना हमारे शुरू में, गुरुद्वारों ने, मंदिरों ने, गिरजाघर ने, उन्होंने भोजन दिया है। अरे हम बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, बहुत ताकत है, दयावान है हम। अगर किसी पे मुसीबत होती, आपत्ति आती है, हम एकजुट होकर उसकी मदद करते हैं। आने वाले समय में अफ्रीका में, जानते हैं आप, वहां पर मारामारी शुरू हो गई है भोजन के मामले में। भारत में नहीं। अरे हमारे पास इस समय 6 करोड़ टन अनाज बैठा हुआ है, चावल बैठे हुए हैं आपके गोडाउन में, कोई कमी नहीं है, कोई भूखा नहीं, एक मौत नहीं हुई। ये जो लॉकडाउन है इसमें भूख के कारण कोई नहीं मरा। अगर कोई मरा है तो टीवी स्टूडियो में मरा होगा, प्राइवेट लोग जो गाली देते हैं भारत में। वी हैव हैंडल्ड इट, हमने ये उदाहरण दिया है पूरी दुनिया को। वी मे नॉट बी एबल टू हेल्प द वर्ल्ड। 154 देश की तो अभी भी हम मदद करते हैं, लेकिन अगर अमीर देश हैं, ये हम उनसे कहते हैं भाई मुझसे मदद नहीं चाहते हो, आपका घमंड है, मेरा एग्जाम्पल तो देखो, मेरा उदाहरण तो देखो, उसमें सीखो किस तरह से आपातकालीन स्थिति में अपने लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। ओके बेटा, Thank you, sir. ऑल राइट। और गर्व रखो, प्रॉमिस। याचिका कहां गई बेटी? Yes, sir. हाँ, यू मस्ट प्रॉमिस बेटा कि भारत की तकदीर आप खुद अपने हाथों से लिखेगी। प्रॉमिस करती हो कि नहीं बेटा? Sir, yes. कौन लिखेगा इस देश की तकदीर? Sir, हम ही लिखेंगे, हम सब बच्चे जो है। ये वादा New है? generation. Yes, sir. प्रॉमिस? Yes, sir. It's a promise. प्रॉमिस को तोड़ना नहीं तो मैं फिर वहां से जहां भी होऊंगा, पाताल में या आसमान में या स्वर्ग में या नर्क में, आके पिटाई करूंगा आपकी। ओके? ठीक है sir. Yes, sir. थैंक यू। And the next question is coming from Jayati Basundhara. Jayati, please come in. आओ बेटी। Afternoon, sir. Sir, my question is, in your school of thought, after the pandemic comes to close, बेटा I can't hear you, समझ नहीं आ रहा। sir, in your sense, am I audible? Yeah, but your voice is breaking. हल्के हल्के बोलो और ऊंचा बोलो। Sir, my name is Jayati. I am from India and I study in SD Public School. I'm from class 11th. And my question is, in your opinion, after this pandemic comes to close, however long that may be, what should be the first step we as a take so that we are able to better prepare for the next pandemic? ये इनका सवाल क्या था? प्रिंसिपल, कैन यू रिपीट इट फॉर मी? वो बोली है कि चाइनीज वायरस के बाद क्या होगा, ये पूछ रही हैं आप? Jayati, come again. So my question. Okay, Jayati, just check your connection. Till then, we can take up a question from the next student. Wait. I'm repeating the question of Jayati. Okay. जयती Sure. बेटा आप टाइप करके भेज दीजिए, चैट में भेज दीजिएगा आंसर। Okay, sir. She's asking, in your opinion, after this pandemic comes to a close, however long that may be, what should be the first step we as a global community take so that we are prepared for the next pandemic? बेटा आपने पूछा है एज अ ग्लोबल कम्युनिटी, सबसे पहले चीज तो मैं बताता हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, यूएन, इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, उसको पहले नदी में डुबा दो। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब झूठे हैं, ये ताकत नहीं है, लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप असली भारत ने दिखाई है। तो एक नई अंतरराष्ट्रीय संस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा फोकस ये नहीं होगा कि आपका उत्पादन कितना बढ़ गया, आपने पहले 100 गाड़ियां बनाते थे अब 200 बनाई ना। हमारा उसमें फोकस होगा कि आपने अपने नागरिकों के विकास के लिए क्या, उनकी खुशी के लिए क्या किया है। दैट विल बी द न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करेंगे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बेटा उसको जो डायरेक्टर जनरल है वो झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलता है। जो चीन उसको कहता है, चीन ने पहले बोला कि इंसान से इंसान तक नहीं हो सकता, वो बोला इंसान से इंसान तक नहीं हो सकता। 3 हफ्ते के बाद चीन बोला इंसान से इंसान तक हो सकता है, वो बोला इंसान से इंसान तक हो सकता है। 2 हफ्ते के बाद चीन बोला ये तो बहुत खतरनाक है, बोला बहुत खतरनाक है। चीन ने बोला कोई बात नहीं हम कंट्रोल करेंगे, बोला कोई बात नहीं हम कंट्रोल करेंगे। चीन बोला हमसे कंट्रोल नहीं होता, तो बोला अजय हमसे कंट्रोल नहीं होता। वो तो उनका जो होता है ना माउथ पीस, जो वो बोलते हैं उसको रिपीट करता है। बिल्कुल नहीं बेटा, ये संस्थाओं को अब खत्म कर देना चाहिए। इनकी जगह नई संस्थाएं आएंगी और जरूर आएंगी, समय लगेगा लेकिन आएंगी। Thank you, sir. Thank you so much. और आप भारत का भविष्य लिखोगी कि नहीं? Yes, sir. Of course. Why not? प्रॉमिस?
Yes, sir, I promise. और अगर मम्मी पापा कोई भी आपसे वो काम करने को कहे जो सही नहीं है तो क्या जवाब देंगी? Sir, like, our कोई भी decisions कहे are... आप बोलेंगे मैं नहीं करूंगी, राइट? Okay. Yes, sir. राइट, चलिए आगे चलिए। The next question is from Anushka Singh. Anushka, please come in. Good afternoon. I'm Anushka Singh from 12th ये standard. लाभ कि मैं चाय पी रहा हूँ और कुछ नहीं है। अच्छा बोलिए। Sir, I have just one question. That is like, what will be the effect of this entire COVID-19 situation on Chinese relationships? On, Yes, sir. On the Indo-Chinese, of the Chinese virus on what? on the Indo-Chinese relationships, especially the bilateral trade. बेटी मैं आपको बता देता हूँ, चीन की रिलेशनशिप सब सारी दुनिया के साथ खराब हो चुकी है, वो झूठ बोलते रहे। हमने अब कहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि शुरू कहाँ हुई। अब WHO वाला जो वो बेवकूफ आदमी है वो भी कह रहा है कि चीन में शुरुआत हुई थी, लेकिन कहता है मैंने कहा चीन में शुरुआत नहीं है, हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू वहां हुआ है। मैंने कहा शुरू और शुरुआत में क्या फर्क होता है? अभी भी वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से अपनी खाल बचा ले और नौकरी अपनी बरकरार रखे, झूठ बोलता है। इसका पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चीन में कोई भरोसा नहीं करता। बेटा बायलैटरल ट्रेड पे क्या होगा, एक चीज आपको बता देता हूं, कोरोना वायरस के मरीज कम है, विशेषज्ञ ज्यादा हैं। इकोनॉमिक हर दिन 500 नए निकलते हैं। भारत 1% ग्रो करेगा, आधा करेगा, 2%, 3%, ये सब किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक कोई दुनिया में नहीं है जिसने इस प्रकार की वायरस देखी हो और लॉकडाउन में जिया हो। मैंने अपनी तरफ से क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये मेरा निजी डिसीजन है, पर्सनल, मेरी पत्नी का और मेरा। जो हमारी जिंदगी बची है हम चीन में बना हुआ कुछ नहीं खरीदेंगे, इसके बाद कभी नहीं खरीदेंगे, भले वो सस्ता हो, हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी कसम जो हमने खाई है कि एक हमारी बेटी, देश की बेटी, गरीब परिवार से जितनी हमारी जिंदगी बची है हम उसकी पढ़ाई का खर्च अपनी तरफ से देंगे। ये दो कस्में बेटा हमने खाई हैं कि हम चाहते हैं कि इस देश ने, भारत ने इतना कुछ हमें दिया है, हम कुछ लौटा चाहते हैं। Thank you, sir. That is very wonderful. Thank you, बच्चे. Thank you. You don't have to follow it. You do what you want, but impact on our bilateral trade जरूर पड़ेगा। अब तो वहां से कंपनियां दौड़ दौड़ के बाहर आ रही हैं और बहुत सी कंपनियां हमारे पास आई। सब लोग कहेंगे हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मेरे चाचा करते क्यों नहीं? महात्मा ने क्या बोला था, अपने आप से शुरू करो, राइट? इसीलिए। Yes, sir. Thank you. We can do it. Thank you. Thank you, बेटा। Thank you. Coming up in the row is Anushka Bansal. Anushka Bansal. बोलो। Anushka Bansal, can you come in? Yes, ma'am. Namaste, Yes. sir. मेरा नाम है अनुष्का बंसल, I'm a 12th class student. तो मेरा अनुष्का- ये सवाल है, Anushka, your voice is cracking. Please. ये मेरा ख्याल चीनी लोग जो ये सुन रहे हैं Okay. उनकी वॉइस को क्रैक कर रहे हैं। बोलिए। okay, I'm repeating. I'm audible now. I can't Your hear. voice is still cracking, beta. ये बैंडविड्थ की समस्या होगी आपके यहाँ पर। Yes, yes. Okay. It's a network issue. और बारिश भी हो रही है। So my question is, I recently heard about the Ayush Ministry news. I can't hear you at all. So, okay. You can type your question. Ma'am, can you come in with her question? Yes. Principal ma'am, can you come in with her question? दीपक जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ अनुष्का बंसल का। जी। She is asking, recently a news came about the success of Ayush Ministry Kadha in Gujarat, which helped those in quarantine. So is India planning to use Ayurveda as a weapon on the national scale during this pandemic? We won't use it as a weapon, we'll use it as a remedy. बेटा योगा तो पूरी दुनिया समझ गई है कितना प्रभावशाली है। अब आयुर्वेदा के बारे, अरे 28 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने आपके प्रधानमंत्री से फोन पे बात की है कि बताओ भारत कैसे डील कर रहा है। द नेक्स्ट बिग थिंग, योगा इज नाउ इंटरनेशनल। 200 देशों में लोग योगा करते हैं। कितने देशों में? 200 देशों में एंड टेरिटरीज में। और आप देखिएगा आयुर्वेद किस तरह से ऊपर बढ़ेगा। बेटा अब भारत जो है ना, वी हैव नाउ बीन इंडिपेंडेंट फॉर 73 साल हो गए। अब हमारी जवानी शुरू। अरे इंसान तो 73 साल में बूढ़ा हो जाता है, देश जवान होता है। अब दुनिया हमारी ताकत देखेगी, अब हमारी सभ्यता देखेगी, हमारी परंपरा देखेगी, हमारी दया देखेगी और हमारी शक्ति देखेगी। ओके,
और आप सबको एक चीज बता देता हूं, मिसेस शर्मा बता दूं, शेयर करूं कुछ? प्रिंसिपल, कैन यू हियर मी? मिसेस बत्ता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. I can hear you well. Please continue. और आप ये जो जितने बाकी बच्चे हैं आप सुन पा रहे हो तो अपना हाथ ऊपर कर लीजिएगा अगर सुन पा। थैंक यू। बस इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल जो कवि थे उन्होंने ये कहा था, बहुत पहले कहा था, यूनान व मिस्र रोमा, यूनान ग्रीस है, मिस्र इजिप्ट है और रोम तो रोम है, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये याद रखिएगा, ये उस समय कह गया था 100 साल पहले, अभी नहीं कहा उसने, बहुत पहले ये कह गया था कि वाकई ही भारत में कोई खास बात है। It will be true to the eternity. Thank you. Next question is coming up from Navya Jain. Navya Jain, please ask your question. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So my question is that COVID pandemic has induced market instability, which has further led to collapse of various industries and sharp rise in unemployment. So, how government is going to tackle this situation? अगले 2 मिनट के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री बना रहा हूं, बताइए आप क्या करेंगे? Well, since in India the population is very high, करेंगे बेटा, समस्याएं मेरे को सब मालूम है, समाधान बताइए। I would मुश्किल है ना? It's very difficult, yes. बहुत मुश्किल है, हम लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल है। ये कहना ये करो, इस सेक्टर को बचाओ, उसको बचाओ, इसको बचाओ, उसको बचाओ। अभी तो शराब बेचने वाले कहते हैं हमारे सेक्टर को भी बचाओ, वो इसेंशियल सर्विस है। अरे हैप्पी बर्थडे, शराब कब से इसेंशियल सर्विस बन गई? वो खैर कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटा हमें सब मालूम है क्या कुछ हो, भरोसा करो हम पर, आप लोगों ने चुना है इस सरकार को, भरोसा करो बच्चे, ये जानते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो 28 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फोन नहीं करते, नहीं तो 11 देशों में हमारे डॉक्टर नहीं जाते, 123 देशों में हमारी रिलीफ सप्लाईज नहीं जाती। बेटा कुवैत ने अभी अभी कहा है मुझे और डॉक्टर चाहिए, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमसे डॉक्टर्स मांग रहे हैं, सब कहते हैं और किसी देश के डॉक्टर हमें नहीं चाहिए, सेंड अस पीपल फ्रॉम इंडिया। क्यों? आप पे भरोसा करते हैं। बेटा वी आर अ वेरी गुड पीपल, हम बहुत अच्छे लोग हैं बुरे लोग हमारे देश में, कुछ दुखी आत्माएं हैं, वो लोग हैं जिन्होंने तो ईसा मसीह को भी लटका दिया था। उनको बोलो कितना अच्छा दिन है, बोलेंगे नहीं खराब दिन है। अब बोलो अब इसको कंट्रोल करें, नहीं मत करो कंट्रोल, कुछ भी कहो वो शुरू करते हैं, हर वाक्य को शुरू करते हैं नहीं से। वो दुखी आत्मा है, उनकी बात मत सुना करो। ओके, बट थिंक अबाउट दिस, हैव फेथ। ऑफ कोर्स वी हैव टू रिवाइव द इकोनॉमी, हमें सब मालूम है, वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, वी डू व्हाट वी हैव टू, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सिंगापुर और साउथ कोरिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हमने कंट्रोल कर लिया, अब देखो वहां पे बढ़ रहे हैं। रशिया ने कहा यहां तो कोरोना वायरस को हमने कंट्रोल किया, कल 10,000 नए केसेस हुए। लॉकडाउन उठा दूं कि ना उठाऊं? आई डोंट नो, यू गिव मी द आंसर। No, sir. स्कूल ना जाना पड़े। Sir, not right now. Not right now. No, sir. प्रिंसिपल साहिबा, मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान में वहां के विद्यार्थी कह रहे हैं कोरोना वायरस जिंदाबाद, ताकि स्कूल नहीं जाना पड़े उनको। नहीं सर, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश में ये सिचुएशन नहीं है। हमारे विद्यार्थी और हमारे टीचर्स दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे टीचर्स ने टेक्नोलॉजी को इतने फास्ट अडॉप्ट किया है, ये एक मिसाल है पूरे वर्ल्ड के लिए। मुझे Absolutely. मैंने आपको बताया China has given an example of its power to destroy. We have shown the power of our example to rebuild. Yes. हमारा उदाहरण देखो, हम मदद करते हैं, हम नुकसान नहीं करते। अरे कौन है वो चीनी जो मेरे सामने टिकेगा, चाय में घोल के पी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आत्मविश्वास, शक्ति आपकी। कुछ और बच्चे क्या क्वेश्चंस ले ले? सर आपने सबका आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया है ना अपने
आपने जिस तरीके से बूस्ट किया है कॉन्फिडेंस, मतलब कितना लो फील कर रहे होंगे सब लोग, लेकिन जस्ट दिस हाफ एन आवर, आपने हाफ एन आवर में जो बोला है ना, मतलब मैं निशब्द हो गई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पूछना। मैं सोच रही थी मैं आपसे कुछ पूछूंगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने बिना पूछे ही दे दिए। आप बेटे हैं भारत के, टेक इंडिया फॉरवर्ड बच्चे। यस सर। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक ही देश है मेरे पास, दो नहीं है, एक मेरा देश है, इसी देश में वापस आऊंगा। Thanks a lot for such inspiring words, sir. Thank you, beta. Thank you. Actually, we all are having goosebumps, sir. आपके बातों ने इतना एनर्जेटिक कर दिया है हम लोगों को कि जो डर था इस पैंडेमिक का, थोड़ा जो भी सबके दिलों में, वो बहुत हद तक बाहर हो गया है। मैडम, डर से आगे बढ़ो, वो तो कहते हैं सब डर के आगे। Exactly. This is what I'm saying. डर के आगे जीत है। ये बहुत बड़ी सीख आज आपसे मिली है। बता देता हूँ, बेटियां जितनी हमारी बेटे हैं, अगर डरते हो किसी चीज से, डरते हो तो मत करो, पर अगर करते हो तो मत डरो। Exactly, sir. Exactly. We have another question coming from a girl again, Shivani Sharma. ये हमारी बेटियां ही सवाल पूछ रहे हैं, बेटे कहाँ गए? बेटे भी है सर। Good afternoon, sir. हाँ बेटी। Sir, it is very commendable that India had introduced and enforced one of the strongest lockdowns in the world. But now, in the few recent days, we have seen a rise in COVID-19 cases. So, is that because of the lack of testing in like the poor areas, because sanitation is still a concern, or is it just because the lockdown has been slackened recently? बेटा देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पहले दो चीजें आपने कही बिल्कुल सही हैं, कि ये सही है कि हर घर में या हर भारतवासी के पास अब शौचालय की सुविधा है। दूसरी चीज जो आपने कही है कि कोविड चाइनीज वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब इसका कारण क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं लॉकडाउन बढ़ा देता हूं 1 महीने के लिए, आप शायद सहमत हैं, इंडस्ट्री क्या बोलेगी, हमारे बाकी लोग क्या बोलेंगे? मैंने बता रहा हूं ना कि हमारे पास बेटा, मेरे पास हर रोज 500 एनालिसिस आते हैं और व्हाट टू डू। यस, आप क्या कर रहे हो, बट एक चीज है, पूरा देश जब तिरंगे के ऊपर दिक्कत आती है या विपदा आती है, तिरंगे के पीछे पूरा भारत चलता है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, अंबानी, ये वो कितना दान दिया है उन्होंने। मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन हमने भी ये फैसला किया कि बाकी जिंदगी जो मैं बता रहा था, हमारी जितनी जिंदगी बची है, मेरी और मेरी पत्नी की, एक हमारी बेटी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। ये हमने सीखा है, क्योंकि घर बैठ कर हमें पता लगा है कि जो मेरी तनख्वाह है या जो कुछ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अरे वो देश में। Thank you, sir. Thank you. So kind of you, sir. So kind of you. But it has to be a girl. लड़के की नहीं करेंगे तो बदमाश। So lucky girls. Okay. Next question coming up from Krish Oberoi. A boy now. अरे शाबाश, आजा बेटा। Krish Oberoi, are you there? Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, I want to ask a question that what is the good impact of coronavirus on the economy of India? Very good. Wow. So far, no, it's a very good question. So far, there is no good impact, but the two things that we are noticing, number one is much greater trust between the citizens and the government. That's a very positive thing. और हमें उम्मीद है कि आगे चल के भी जो हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्री जो कुछ कह रहे हैं, हम उस पर अमल करेंगे. The second positive thing that we are seeing is much greater respect for the doctors, scientists and our police. जो हम खड़े होके ताली बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, बेटा ये नौटंकी नहीं है. We are expressing our feelings. You know, हमारे पुलिस ऑफिसर्स क्या कहते हैं कि आप अपने घर में आराम से सोइए, हम बाहर हैं. रात को आपके देश पर 3-4 बार धोखे से हमला किया है दुश्मन ने, लेकिन आप फिर भी चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आपके सिपाही सीमा पर जाग रहे हैं. सोचो उनके बारे में. So I believe this trust is going to go a long way in bringing India back. दूसरा हमारा our confidence, our respect for the police, for the army, for doctors, for scientists. और तीसरा, हमारे पास तो आपातकालीन स्थितियां कई आई हैं, हमने निपटा है, हम जीते हैं. हमारे पास भोजन नहीं था, उसको हमने पराजित, चेचक थी, हमने पराजित किया, स्मॉल पॉक्स थी, हमने पराजित किया. अरे ये चीनियों की महामारी क्या है, इसको भी पछाड़ देंगे हम, देखते जाइए. Okay? This is the positive outcome.
Thank you, sir. Thank you. The next question is coming up from Aditya Pratap. Yes, Aditya ji. पूछो की पूछना है? Aditya, come in. Are you there? उसको नींद आ गई है. Okay, so we can take up a girl's question again. Naina Dangi, are you there? Naina, Yes, ma'am. come on with Bolo. the question, Naina. Come in, Good Naina. afternoon, sir. I'm Naina Dangi from SD Public School, and actually, I am a medical student, so I have a doubt regarding this. Like, you know that COVID-19 is a new strain of virus, and actually there is no antibodies and there is no vaccine available till now. So what we can use, we can actually use passive therapy. What are your views about passive therapy? सबसे जरूरी चीज है कि ये वायरस ऐसे तो मरेगी नहीं. वैक्सीन जो आप खाओगे वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, वो हवा में से वैक्सीन को उड़ा नहीं देगी. द बेस्ट थिंग इज टू कंटिन्यू टू यूज मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत जरूरी है. तो उससे संभावना बहुत कम हो जाए. मास्क नहीं यूज करेंगे, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 शायद 7 संभावना है कि आपको हो जाए. मास्क यूज करेंगे वही संभावना 3 तक आ जाती है. दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग, प्रिवेंशन, एंड वी होप दैट ऑल इंडियंस विल फॉलो दिस एडवाइस. यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज नो वैक्सीन. काम चल रहा है, 3-4 इंडियन कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं. विदेशों में इजराइल कहता है मैंने बना दिया है, इंग्लैंड कहता है मैंने बना दिया है. अभी तो आपका पड़ोसी भी कहेगा मैंने अल्लाह की मेहरबानी से बना दिया. कोई कुछ बोलेगा, चीनी बोलेगा मैंने ये कर दिया, लेकिन नोबडी नोज बेटा. वी आर ऑल, वो क्या होता है कि पूरा अंधेरा है और उसके अंदर कुछ नेत्रहीन लोग कह रहे हैं हमने दुनिया देख ली है. ये किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला. यू नो, इट्स लाइक अ ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. नहीं होता बेटा. वी आर वर्किंग, we will find a vaccine. We have discovered it in the past too. ढूंढा कि नहीं हमने? स्मॉल पॉक्स के लिए आपको जो इंजेक्शन लगते हैं, चेचक के लिए, सब हमने हटा दिया. एड्स के लिए हमने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स किए. भारत, इंडिया वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में काम चल रहा है, बेंगलोर में काम चल रहा है. यहाँ एवरीबॉडी इज वर्किंग. वी हैव द बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट इन द यूनिवर्स, नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड. और ये ढूंढ लेंगे बेटा, भरोसा रखो. Okay. So, sir, I was just saying, like, passive therapy is like, you know, when virus attacks, so we develop some antibodies. So I was thinking, like, when some people who have recovered and fought from this coronavirus, so they might have developed some antibodies regarding that. आप क्या कह रही है? वो herd immunity की भी बात, वो मैंने पहली बार सुना था. पहले तो herd mentality सुनी थी, अब herd immunity बन गई है. I don't know, बेटा. We leave it to the doctors to. I don't have an answer. मैं नहीं जानता. But if that happens, why not? Let them try it. I really don't have an answer. All I go by is the advice of the Indian Council of Medical Research. They are the best in the world. And they are telling us, ये करो ये. जो वो कहते हैं, मैं वो सुनता. जो WhatsApp यूनिवर्सिटी से मेरे पास मैसेज आते हैं कि पेट के ऊपर प्याज रख के सो जाओ या हल्दी के साथ सो जाओ, ये कर, वो सब एक भ्रम होता है और एक आपका होता है वैज्ञानिक विश्वास. I prefer to go not with superstition, but with scientific evidence. Okay. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. There are many questions. Hello. जी. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हम उन क्वेश्चंस को आपसे मेल के द्वारा पूछेंगे. क्यों? अब मैं समय खत्म हो रहा है क्या? नहीं, हमारे पास तो बहुत समय. हम चाह रहे थे कि आपका समय तो हम नहीं ले रहे ज्यादा. देखिए, हमारे बच्चों के लिए आप मेरा जितना भी समय लें उतना कम है, और लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं. मैं थोड़ी देर पहले हमारे साथ अतुल कोठारी जी भी हैं और उनके एक दूसरी मीटिंग भी थोड़ी देर में शुरू होनी है, तो मैं पहले उनको आमंत्रित करना चाह रही हूँ. अतुल कोठारी जी थी, नमस्कार. तो नेट कनेक्शन एकदम से चला गया था. अभी आप सब मेरे को कैसे हैं अतुल जी? आप नमस्कार, एकदम बढ़िया. आप सबको ये बता दूं कि जैसे आप हेलो जैसे आप अपने मीडिया पर्सनालिटीज के फैन है, उस समय हमारे जमाने में हार्ट थ्रोब हुआ करते थे दीपक बोहरा जी. हम इनके प्रोग्राम्स देखकर खड़े हुए. इनकी बात कर रही हैं आप? इनकी बात कर रही हैं? इनसे बहुत कुछ सीखा. Thank you, ma'am. Thank you. It's an honest confession, sir. तो अब हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं सचिन हैं, और
मेरी पत्नी नहीं सुन रही है, थैंक गुडनेस। हेलो, am I audible? Yes, Yes, you ma'am, you're audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, तो माननीय अतुल कटारिया जी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए हैं और ये संगठन 2008। Go ahead, sir. Sir? हेलो। Yes, sir. नमस्कार सभी को, विशेष करके दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी ने बहुत ही सारे बच्चों में, सभी में राष्ट्रभक्ति जगाने वाली सारी बातें कही है और वो फिर अपनी भाषा में कही, इसलिए जल्दी समझ में आ गई लोग, तो इसलिए दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जो विषय चल रहा था तो प्रश्नोत्तर का विषय चल रहा था और आप भी उसको प्रश्नोत्तर में और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं फिर बाद में दूसरी बार शेयर करूंगा। तो अभी बस मैं आपको ही फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन आंसर फिर से प्रारंभ किया जाए और आपसे पूरा इंटरेक्शन हो जाए, वो अच्छा है। मैं तो बाद में भी आ सकता हूं इसके साथ में, इस ग्रुप में, तो इसलिए फिर से आयोजकों का निवेदन है अनीता जी और सुनीता जी से कि फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करें। और दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हम दीपक जी आराम से मिलेंगे फिर। ये महामारी खत्म हो जाए तो मैं आऊंगा चाय पीने। जरूर 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 दीपक जी बहुत। So ma'am, can we take up one last question? आपने जितनी देर तक करना करिएगा, not an issue. I'm asked to do this by the boss, so I'm happy to do it. Oh, so kind of. By the way, this entire conversation is being observed by some very senior people. Yes, sir. So the last question coming up from Manisha Sharma. Manisha ji, boliye. Manisha. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bedi. So I'm from SD Public School and I study in class 11. My question is, my question for you is, was it China's conspiracy to spread the coronavirus in the countries like Italy, America, etc., to be more powerful and to rule the economy of the world? बेटा ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रही है। उनको मालूम था, उन्होंने बताया। कुछ लोग कहते हैं अमेरिकियों को भी मालूम था, उन्होंने किया है। कुछ लोग कहते हैं इटली में शुरू हुआ है। ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऑल वी नो फॉर सर्टेन इज दैट इट स्टार्टेड इन चाइना। दैट्स नंबर वन। एंड वेयर इन चाइना द टू पॉसिबिलिटीज, एक तो वुहान में जहां वो चूहे, बिल्ली, चमगादड़ वादड़ बेचते हैं, छिपकलियों को खाते हैं, या वहां शुरू हुआ है या फिर ये शुरू हुआ है इन अ लेबोरेटरी। बट द फैक्ट दैट इट स्टार्टेड इन चाइना, नोबडी डाउट। और दूसरी चीज, उन्होंने छुपाया है सच्चाई को। उन्होंने 2-3 हफ्ते झूठ बोला है, सच्चाई को उन्होंने छुपाया है, उन्होंने नजरअंदाज किया है ताकि दुनिया उन्हें ना कहे कि गलती आपकी है। लेकिन बेटा ये दुनिया भूलेगी नहीं। जहां पर आज तक कितने हैं, 40 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मोर देन 40 lakhs have died। किस लिए? ये इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो अपने आप को सरमायादार समझते हैं, ठेकेदार समझते हैं, दुनिया के रक्षक समझते हैं। रक्षक वो होता है जो दूसरों की मदद करता है। चाणक्य ने क्या कहा था बेटा? मित्र वो है जो बीमारी में आपका साथ देता है। भारत विश्व मित्र भी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप भी चीनी माल मत खरीदना, भले ही सस्ता हो। Sure. That's my personal decision। मैं नहीं खरीदूंगा। भले ही मेरे दोस्त हैं जो इंपोर्ट करते हैं, वहां से आएगा, तुम इंपोर्ट करे जो करो, मैं नहीं खरीदूंगा। Even if I have to pay more for an Indian brand, I'll buy anything made in India. Great, made in India. I'm made in India. Yeah. Can we have Aditya Pratap? Is he available? Aditya Pratap, can you come up with your question, please? आदित्य प्रताप जी, किथे हो तुसी? He's not available. Sir, इस थोड़े से टाइम में जो आपने हम सब में आत्मविश्वास जगाया है ना, और आपने बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। एंड आई बिलीव, आई एम श्योर कि हम सब आपकी टॉक से बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे और उसको फॉलो भी करेंगे अपनी लाइफ में। I'm very sure about it.
यू नो एक जाते वक्त मैडम, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि उठूंगा नहीं, क्योंकि भले ही कमीज पहनी है नीचे पजामा है। तो एक पंजाब में हम एक हमारा जोक होता था बहुत पहले, बच्चों के साथ बांटता हूँ। तो हमारे एक पंजाबी में दोस्त गर्मी के मौसम में संडे के दिन घर पे बैठे हुए थे। उन्होंने इस तरह की सफेद कमीज पहनी थी, बटन बंद कर रखा था, बड़ी खूबसूरत टाई लगा रखी थी। तो हमने जाके पूछा, भाई संडे के दिन गर्मी का मौसम ये क्यों? वो कहते अरे दीपक, कभी ना कभी कोई मेहमान आ जाता है। अच्छा मान लिया, पर उसके नीचे तो आपने पजामा पहन रखा है। अरे कभी कभी कोई नहीं भी आता। तो हर चीज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। सो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। Thanks a lot, sir, for this enriching session. टीचर्स की तरफ से एक अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, और ये सब टीचर्स के बिहाफ पर कहना चाहती हूँ। सारी दुनिया को इस समय, सारी दुनिया ने इंडिया का बहुत सारी बातों पे लोहा माना कि हमने टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया, हमने आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम किया, हम अच्छे से लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह इस समय पे हमारे टीचर्स ने जैसे मोर्चा संभाला है, और अपनी उम्र को छोड़ करके, बहुत सारे सीनियर टीचर्स भी हमारे, बहुत सारे यंग टीचर्स भी हैं, लेकिन सबने जैसे टेक्नोलॉजी सीखी है और जिस तरह से पेरेंट्स का बर्डन शेयर किया है, जिस तरह से ये पढ़ लिया कि बच्चे भले ही लॉकडाउन सिचुएशन में हो, लेकिन उनके माइंड को ब्लॉक नहीं होने देंगे, उनकी लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब भी जो है वो अभिनंदन के पात्र है। मैं रोज जब सुनती हूँ ना सबके बारे में कि आज जो है वो डॉक्टर्स के लिए, आज सैनिकों के लिए चीयर अप किया, तो मुझे लगता है कि लोग टीचर्स को क्यों भूल गए हैं। टीचर्स को कोई नहीं भूलता। प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल जानते हैं, आप लोग नई टेक्नोलॉजी, जूम का नाम आपने आज से 3 महीने पहले कभी नहीं सुना था, माइक्रोसॉफ्ट मीट का नहीं सुना था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं सुना था। आप लोग सब सीख गए। यहाँ तक कि मेरी पत्नी एक स्कूल के साथ संबंधित है जो डिस्ट्रिक्ट अंबाला, तहसील नारायणगढ़, गांव भूरेवाला में है, बहुत दूर है, रिमोट एरिया। तो वहां पर स्कूल में एक पास में उनके कुछ लोगों की मदद करते हैं, एक एम्बुलेंस भी है। तो एक टीचर से बात कर रही थी कि समय कहाँ, बोली मैडम मैं एम्बुलेंस में हूँ। अरे तुझे क्या हो गया? नहीं मैडम एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ी हुई हूँ ताकि सिग्नल अच्छा है। हमने कहा कि भाई ये चीजें वो लोग सीख रहे हैं। गांव वाले, गांव में रिमोट एरिया में वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, और बच्चे आजकल तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं हमको, व्हिच इज वंडरफुल। वी फील सो हैप्पी कि सारी दुनिया इकट्ठी हुई है। और अल्टीमेटली मैम, माय मदर वाज अ टीचर, माय माइंड वाज शेप्ड बाय अ टीचर। और आप सब भी तो लिख रहे हैं इन बच्चों के माइंड्स तो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। इनकी जो फ्लॉपी ड्राइव है ना, इनका यूएसबी, वो बिल्कुल फ्लैश ड्राइव ब्लैंक है, सॉफ्टवेयर तो आप ही लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज हम सबने एक बहुत ही अद्भुत मैसेज दिया है कि जब सिचुएशन ऐसी हो सामने कि डरे या लड़े, तो लड़ना ही चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर से आगे बढ़कर लड़ना है। तो ये मैसेज आज सब लेकर जाएंगे। और अब कोठारी जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे। एक पिक्चर में मैं एक फादर साहब, डैडी साहब को भी देख रहा हूँ। वो किसके साथ बैठे हुए थे? याशिका, आपके डैड बैठे हैं आपके साथ? जिंदल साहब आप हैं? Yes, sir. बोलिए बोलिए जिंदल साहब, शर्मा क्यों रहे हैं? यस सर। कैसे हैं आप जिंदल साहब? बस गुड सर, बढ़िया। अच्छा लगा सुना आपने? सर बहुत अच्छा लगा सर, आपको उन दिनों से जानता हूँ जब बिल्कुल आप बहुत यंग थे। तो अभी क्या बुढ़ा हो गया? अब तो बुजुर्ग हो गया। नहीं सर, जब दूरदर्शन पे मैं आपको देखता था मॉर्निंग में, वो दिनों की याद ताजा हो गई। थैंक यू जिंदल साहब। सर आवाज में वही दम है जो पहले। वही एग्जैक्टली। आपकी आवाज कानों में पड़ती है तो ऐसे लगता है कि that is the same person who used to speak then. Even the face, the skin, everything is same, only the hair color. That's a change. That too is in nowadays, Silver. मैडम yeah. बाल मेरे बिल्कुल काले हैं, मैं ब्लीच करके सफेद करता हूँ। तो बहुत कुछ आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास की और देश के प्रति स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, वो भावना फिर से जागृत हो गई है। स्वदेशी के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ना है, स्वदेशी को ही अपनाना है।
और जिस तरह से आज हम मिल करके एक चिंतन, एक मन से आगे बढ़ रहे हैं, एक ही बात सब लोग सोच रहे हैं, एक ही माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, वो हमारे देश को डेफिनेटली प्रगति के मार्ग पर तो लेकर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत जो है सच में विश्व गुरु बनने के राह पर फिर से आ गया है, क्योंकि अब हम पुरानी चिंतन परंपराओं को अपनाकर और साथ में नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर इस बार इस समय जो ब्लेंड मॉडल हमने एजुकेशन का दिया है वो अपने आप में एक कमेंडेबल मॉडल है। तो मैं सब बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। उन सारे फेसबुक लाइव चैनल्स, 4-5 चैनल्स पर इस समय ये प्रोग्राम लाइव था, उन सब चैनल्स को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। एसडी पब्लिक स्कूल का चैनल, ड्रीम बिग वेलफेयर का चैनल, फेयर गेज का चैनल, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का चैनल। आप फेयर गेज के साथ भी जुड़ी हुई हैं? जी जी जी। That's a superb संस्था, बहुत ही अच्छी संस्था है। मैं जितने लोग, सॉरी क्षमा कीजिए, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बस एक मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा और मेरे बनाने वाले से मुलाकात होगी, ये प्रार्थना करिएगा कि वो मुझसे तीन कहे मुझसे कि 3 जो आप चाहते हैं, 3 चीजें वो मैं दूंगा। तो पहली चीज उससे मांगूंगा, फिर से भारत में मेरा जन्म हो। दूसरा, फिर से भारत का मैं राजदूत बनूं। और तीसरा, इस बार मुझे पढ़ाई का श्रेय मिलना चाहिए एसडी पब्लिक स्कूल में। नमस्कार सर और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बस अंत में सबके लिए सर की तरफ से, सर की जो भावनाएं हैं और जो हम सब में आज भावनाएं इस समय जन्म ले चुकी होनी चाहिए, अगर अभी तक नहीं है तो हर युवा के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया कि हमें बच्चों से बातचीत करके ऐसा पता चला कि जो युवा है वो इस समय बड़ा आहत है, हतप्रभ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य क्या होगा। मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरा आने वाला कल कैसा होगा पता नहीं। कितनी बीमारियों से मुझे जूझना होगा, कितनी और तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस सब के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्किलफुलनेस को बढ़ाएं। तो प्रगति पथ पर रे तरुण, तेरा सफल अभियान होगा, भावना जब साधना होगी तभी कल्याण होगा। और हम इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। SD Public School Pithampura will soon get you another so very interesting, enriching webinar to help you feel alive and feel better in this time of the pandemic. Bye for now, everyone, from SD Public School Fraternity. Thanks a lot, sir, for this very, very enriching session. Thank you. Thank you. Thank you. Or Dr. Anita Sharma, ma'am.